So let's start with femur. Femur के लिए the correct anatomical placement of this bone, the head of the femur must lie medially. Its anterior surface is very smooth, whereas the posterior surface is rough. In this way, you will be able to know कि right side की है ये femur या left side की है. Now this femur is of right side because this head will lie medially and this shaft must be smooth. Anteriorly आपके पास तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने याद रखना है, these two condyles must be joining one another. Posteriorly ये दोनों condyles separated होंगे with the help of these interchondric fossa. तो दो तरीके से आप posterior surface याद रख सकते हो. Condyle आपस में दोनों separated होंगे and the posterior surface is going to be rough. And the last point is that these two condyles must be in the same plane. ठीक है, ये दोनों condyles आपने same plane में रखने हैं. अगर आपने condyles को same plane में रखा, this means you are holding the bone right. Let's start with its correct anatomical position. Now this femur, आपको पता है कि this is going to make the head of the femur is going to articulate with the acetabulum of the femur of the pelvic bone. तो आपके पास यहाँ पर the head of the femur must lie medially, upward, and forward, right? And in this way, this femur, as you can easily appreciate in this picture, head of the femur आपके पास और जो femur है वो आपके पास obliquely place होती है inside your body, and the condyles, the lower end of your femur, are moving medially. ठीक है, और जब आपके पास नी जॉइंट बनता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ योर बॉडी. This is the placement of your femur. The correct anatomical holding is you must hold it from its shaft. Let's start with its upper end. Upper end में this round structure is the head of the femur. Now this head of the femur is going to articulate with the acetabulum. ये आपके पास दरमियान में एक थोड़ा सा ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स फोविया. मैं यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर दूंगा क्योंकि ये हेड डैमेज है. दिस फोविया इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हिप जॉइंट में लिगामेंट अटैच होंगे दैट इज गोइंग टू hold this head of the femur in the right place. Now this head of the femur is more spherical like structure. उसके बाद आपके पास आ जाती है neck. Now this neck is about 4 centimeter. Now this neck of the femur, this is the its anterior surface and it's rough. Posterior surface is almost smooth. Now the neck of the femur, अगर आप upper border and this is your lower border. The upper border is horizontal, ठीक है, is more horizontal and it's convex. Whereas the lower border, it's straight, it's oblique, and it's like not convex or concave, it's very straight, as you can easily appreciate right over here. यहाँ से start होगा ना. Just forget about this and look at the lower border. It's straight and it's oblique and it is directed downward and it is going to meet this bony prominence. This is your lesser truncator. तो लोअर बॉर्डर लेसर ट्रोकेंटर के साथ मीट करेगा, अपर बॉर्डर इज गोइंग टू मीट विद योर ग्रेटर ट्रोकेंटर. नाउ फ्रॉम द हेड ऑफ द फीमर टिल दिस क्रेस्ट, this surface is concave, right? It's concave. If I move this, yeah, from the head of the femur till this crest, the आपके पास जो surface है ये सीधी line वाली, that is concave, and from this superior border and to this inferior border, this surface is convex, right? You can easily feel this. This is convex and this is concave. ठीक है. Now this was all about your neck of the femur. जो आपके पास है neck का जो interior surface है ना, that this is whole is going to be in the hip joint. हिप जॉइंट के कैप्सूल के अंदर होगा. पोस्टीरियरली जो नेक होगी वो ऑलमोस्ट मिडल हाफ जो होगा वो कैप्सूल के अंदर होगा, बाकी जो कैप्सूल के अंदर नहीं होगा. दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द नेक और हेड ऑफ द फीमर. उसके बाद अगर एंटीरियरली देखूँ तो आपके पास there are two bony prominences that you can see. This is your greater trochanter and this is your lesser trochanter. Greater trochanter को see करना, visualize करना is more easy as compared anteriorly as compared to lesser trochanter, क्योंकि lesser trochanter is more visible posteriorly. तो posteriorly move करूँ, this is your greater trochanter that is quadrate structure. चार borders हैं इसके, right? Quadrate. Whereas the lesser trochanter is more triangular shape. ये आपके पास triangular shape. Now the greater trochanter is and the lesser trochanter are going to meet with one another. Posteriorly, the greater and lesser trochanter are going to meet with the help of this crest. This is intertrochanteric crest. ठीक है.
whereas anteriorly the greater and lesser trochanter are going to meet with the help of this line, that is intertrochanteric line. तो anteriorly line होगी, posteriorly you will have your crest. Now the trochanters अगर मैं बात करूँ, these are very important क्योंकि यहाँ पर posteriorly this intertrochanteric जो आपके पास crest है, यहाँ पर greater trochanter के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा fossa है, that is intertrochanteric fossa, and it's very important. इंटरट्रोकैंटिक यहाँ पे अगेन ये वाला पार्ट डैमेज है, बट इंटरट्रोकैंटेरिक फोसा के ऊपर आपके पास कुछ रफ प्रोमिनेंसेस होती हैं, राइट? And this intertrochanteric fossa and the rough prominences and the rough surfaces that are going to be present above this intertrochanteric fossa are very important for different muscle attachment. Now posteriorly the intertrochanteric fossa के दरमियान में यहाँ पर एक थोड़ा सा bony prominence है. This is your quadrate tubercle. Now, greater trochanter की बात करें, then this is your anterior surface, that's your lateral, and that's your posterior surface. Let's discuss the shaft of the femur. फीमर के शाफ्ट को हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, फिर मिडिल पार्ट, एंड दिस इज योर मिडिल पार्ट एंड योर लोअर पार्ट. अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मिडिल पार्ट की, बिकॉज इसमें 3 सर्फेसेज हैं, 3 बॉर्डर्स हैं. हेड आपका था मिडिल साइड पे, देन दिस इज़ गोइंग टू बी योर मिडिल बॉर्डर. अच्छा, मिडिल बॉर्डर जो है वो आपके पास इल डिफाइंड है, लाइक इट्स नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. और इसी तरीके से लैटरल बॉर्डर, इट इज़ नॉट वेरी वेल डिफाइंड. लैटरल बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर. पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज़ योर लीनिया एस्परा, दिस इज़ योर पोस्टीरियर बॉर्डर. पोस्टीरियर बॉर्डर में मीडिया लीनिया एस्परा का जो लैटरल साइड पे है दैट इज़ योर लैटरल लिप, और जो मीडियल साइड पे है दैट इज़ योर मीडियल लिप, राइट? अच्छा, सर्फेसेस में बात कर जाए तो ये आपके पास एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सर्फेस होगी, लैटरल साइड पे लैटरल सर्फेस होगी, पोस्ट मीडियल साइड पे दिस इज़ गोइंग टू बी योर पोस्ट मीडियल सर्फेस. अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर की बात करें, देन अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट हैज़ 4 बॉर्डर्स एंड 4 सर्फेसेस. मिडिल पार्ट की 3 बॉर्डर्स थे, 3 सर्फेसेस थे. अपर पार्ट में हमारे पास दिस इज़ गोइंग टू बी मिडिल बॉर्डर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लैटरल बॉर्डर. अच्छा, पोस्टीरियर साइड पे लेसर ट्रोकेंटर के नीचे देयर इज़ अ रफ सरफेस दैट इज़ योर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी. ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी का ये लैटरल साइड पे दैट इज़ योर लैटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी एंड दिस इज़ योर मीडियल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी. इसी तरीके से आपके पास इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन्स है, दिस इज़ योर इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन. इससे एक लाइन यहाँ पे फॉलो कर रही है, दिस इज़ योर स्पाइरल लाइन. ये आपके पास नज़र आ रही है, दिस इज़ योर स्पाइरल लाइन. नाउ दिस स्पाइरल लाइन इज़ अनदर बॉर्डर. ठीक है, तो मतलब कि अपर पार्ट में आपके पास एक था मिडिल बॉर्डर, एक था लैटरल बॉर्डर. इसी तरीके से दैट इज़ योर स्पाइरल बॉर्डर. एंड ग्लूटल ट्यूबरोसिटी का जो लैटरल लिप है दैट इज़ गोइंग टू बी योर अनदर बॉर्डर. तो 4 बॉर्डर हो गए ना, मीडियल, लैटरल लिप ऑफ ग्लूटल ट्यूबरोसिटी एंड स्पाइरल लाइन. अच्छा, स्पाइरल लाइन और ग्लूटल ट्यूबरोसिटी के दरमियान में जो है ये आपके पास पोस्टीरियर सरफेस होगा, ये आपके पास इंटीरियर सरफेस होगा, और यहाँ पे ग्लूटल ट्यूबरोसिटी के लैटरल साइड के से बाहर ये वाला आपको बायलैटरल सरफेस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर मीडियल सरफेस. इसी तरीके से लोअर पार्ट ऑफ द फीमर में बात करें तो देन लीनिया एस्परा जो है आपके पास लोअर पार्ट में जो है डाइवर्ज कर जाएगी है. दिस इज योर डाइवर्जेंस. दिस डाइवर्जेंस इज़ गोइंग टू मेक योर 2 अदर बॉर्डर्स. और लोअर पार्ट में भी अपर पार्ट की तरह 4 बॉर्डर्स एंड 4 सर्फेसेस है. अगेन हेड ऑफ द फीमर वाली साइड पे जो होगा ये दिस इज़ गोइंग टू बी योर मीडियल बॉर्डर, दिस इज़ गोइंग टू बी योर लैटरल बॉर्डर. उसी तरह जो आपको लीनिया एस्परा का जो मीडियल साइड पे है दैट इज़ योर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, राइट? और जो लैटरल साइड पे दैट इज गोइंग टू बी लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन. और इन दोनों के दरमियान में दिस इज़ योर सरफेस दैट इज़ योर पोप्लीटियल फोसा और पोप्लीटियल सरफेस, राइट? दिस इज़ योर पोप्लीटियल सरफेस और पोप्लीटियल फोसा. अच्छा, मीडियल साइड पे दिस इज़ गोइंग टू बी मीडियल सरफेस एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर लैटरल सरफेस. और एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सरफेस होगी. तो ये आपके पास थी शाफ्ट ऑफ द फीमर. लोअर एंड ऑफ द फीमर में बात करें देन आई हैव टोल्ड यू दीज 2 bony prominences, these are the condyles of the femur. अच्छा, जो आपने अगर पीछे नीचे से देखे ना, एज यू कैन ईजिली अप्रिशिएट फ्रॉम दिस डायग्राम एज वेल, तो आपके पास नीचे से देखने से हमें पता लगता है कि जो आपके पास जो लैटरल कॉन्डाइल है ना, मैं इसको यहाँ से अगर दिखाऊँ इस हाँ ये ठीक है. लैटरल कॉन्डाइल को आप देखो कि लैटरल कॉन्डाइल इज़ मोर अलाइंड विद द शाफ्ट ऑफ द फीमर.
ठीक है, इसका मतलब, और lateral condyle is more bigger as compared to the medial condyle. तो lateral condyle is the more important in the weight bearing. वेट आपके पास किस तरह से होता है, वर्टिबल कॉलम से आपके पास विद द हेल्प ऑफ द सेक्रोइलिक जॉइंट आपके पास पेल्विक में वेट ट्रांसफ़र होता है, और पेल्विक से फिर आपके पास हिप जॉइंट की मदद से फीमर में वेट ट्रांसफ़र होता है, राइट। फीमर से फिर विद द हेल्प ऑफ द नी जॉइंट टिबिया पे और फिबिला पे, और उसके बाद आपके पास फुट पे, और फुट से आपके पास ग्राउंड में वेट ट्रांसफ़र होता है, राइट। और वेट ट्रांसफ़र में नी जॉइंट में लैटरल कोंडाइल इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बात इट इज़ मोर अलाइंड विद द शाफ्ट ऑफ द femur and it is more bigger. This is going to be lateral condyle, this is going to be medial condyle. अच्छा, condyle से ऊपर आपके पास कुछ bony prominences होंगी medial side पे medial epicondyle, lateral side पे lateral epicondyle. अच्छा, anterior surface पे these two condyles are joining with one another, और ये एक V shape आपके पास articular surface बन रहा है that is going to be covered with helen cartilage. एंटीरियर साइड पे दिस कॉन्डाइल का जो आपके पास होगा जॉइंट, दैट इज़ गोइंग टू बी योर दैट इज़ गोइंग टू आर्टिकुलेट विद द पटाला. पोस्टीरियर साइड पे जो आपके पास कॉन्डाइल्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी दीज आर आर्टिकुलर सर्फेसेज. यहाँ पे अगेन हाइलन कार्टिलेज से कवर होंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी आर्टिकुलेटिंग विद द टिबिया. तो एंटीरियर साइड पे पटाला, पोस्टीरियर साइड पे टिबिया, और जो दरमियान में इंटरट्रोकेंटारिक फोसा है दैट इज़ नॉन आर्टिकुलर, और ये आपके पास पोप्लिटियर सरफेस है. अच्छा, जो लैटरल है ना आपके पास एपिकोंडाइल, सॉरी मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल से आप देखो एंटीरियर या पोस्टीरियर साइड पे, देन देयर इज अ स्मॉल प्रोमिनेंस. दिस प्रोमिनेंस इज अडक्टर टुबरकल, राइट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एज वेल एज in an important bony attachment. अच्छा, this whole bone is very important clinically as well as in forensic science. The आपके पास फीमर जो होती है, it's 1/4 of the total हाइट ऑफ योर बॉडी. मतलब कि आप इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्पेसिफिम, आपके पास एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केलेटन आपके पास मिल जाएगी. तो पहली बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिनिंग द हाइट ऑफ द स्पेसिफिम, ठीक है. सेकेंडली आपके पास जो फीमर है, इट इज़ जो जितने सेकेंडरी और सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन है, वी नो कि वो आपके पास आफ्टर द बर्थ जो है वो अपेयर होते हैं. बट द सेकेंड सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन ऑफ द फीमर can appear before birth, around the ninth month of pregnancy. So it's an important landmark for forensic sciences as well. कि like for example, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो देर विद द हेल्प ऑफ रेडियोग्राफी आप देखोगे कि क्या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन ऑफ द फीमर हैज़ बीन डेवलप्ड और नॉट. अगर डेवलप्ड हो चुका है, इसका मतलब जो फीटस है आपके पास वो अराउंड 9 मंथ का है, राइट. इस तरह से आप एज भी डिटर्मिन कर सकते हो. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस कि आपके पास जो हेड ऑफ द फीमर है, राइट, एंड दिस नेक, अगर ये हेड ऑफ द फीमर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट आर्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर आपके पास यू हैव ट्रोक्लियर एनास्टोमोसिस, और लो ट्रोकेंटर के ट्रोकेंटर पे आपके पास पोस्टीरियर साइड पे आपके पास क्रूशिएट एनास्टोमोसिस हो रही होती है. अच्छा, ये आपके पास अगर नेक की साइड पे आपके पास अगर हेड डैमेज हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो हेड की नेक्रोसिस भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है हेड की तरफ ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, ब्लड को हेड सप्लाई यहीं से आनी है ना, तो ब्लड को हेड सप्लाई नहीं आएगी तो हेड की नेक्रोसिस भी हो सकती है, राइट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एज वेल. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द वेट बेरिंग, इट्स द वेट बेरिंग बोन ऑफ योर बॉडी, एंड इट्स द लार्जेस्ट लॉन्ग बोन ऑफ योर बॉडी. अच्छा, आपने 3 एंगल्स हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द नंबर 1 इज़ द नेक एंड शाफ्ट एंगल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ये आपके पास है. एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट, आप एक लॉन्ग एक्सिस ड्रॉ करो from the shaft of the femur and an axis from the neck of the femur. Then this angle that is going to be formed, that is going to be between the neck and the shaft of the femur, and in adults it is about 127 degree. अच्छा, ये फीमर में जो है
कम होगा क्योंकि फीमर में आपके पास वाइडर पेल्विस होता है। अच्छा, ये जो आपके पास एंगल है, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द मूवमेंट्स ऑफ आवर हिप जॉइंट। जब आपके पास बेबी बॉर्न होता है ना, जब बच्चा बॉर्न होता है, देन दिस एंगल इज अबाउट 90 डिग्री, ठीक है, और विद द एज दिस एंगल इट डिक्रीज, एंड दे आर टू क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस एंगल एज वेल। अगर ये इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। अगर नॉर्मल नेक एंड शाफ्ट एंगल ऑफ द फीमर जो कि 27 डिग्री है, अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, अबव 127 डिग्री हो जाए, देन इट्स कॉक्सा वेल्गा। अगर इससे कम हो जाए, देन इट्स कॉक्सा वेरा, and its abnormal decrease in neck and shaft angle, meaning to say less than 120 degree, ठीक है। the second angle is its trochanter shaft angle, sorry, trochanter and the shaft। अगेन शाफ्ट से एक एक्सिस ड्रॉ करना है और ग्रेटर ट्रोकेंटर से एक एक्सिस ड्रॉ करना है। दिस इज योर ट्रोकेंटेरिक trochanter shaft angle and it is about 10 degree 8 degrees in adults। इट इज़ इम्पॉर्टेंट रेडियोलॉजिकली क्योंकि अगर बस इट प्रोवाइड्स द आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मेडुलरी कैनाल। अगर बस बोन के सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि इंटरनली देयर इज अ स्मॉल कैविटी जिसमें आपके पास बोन मैरो होगा, राइट, दैट इज़ योर मेडुलरी कैनाल। ड्यूरिंग सर्जरीज आपके पास जब सर्जन ने देखना होता है, इंसर्शन करनी होती है या फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स में, ठीक है, तो आपने देखना होता है कि मेडुलरी कैनाल है कहाँ पर, देन दिस ट्रोकेंटर शाफ्ट एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट इज द एंगल ऑफ femoral torsion, राइट, दिस एंगल इज फॉर्म बिटवीन दी, अगर आप ऊपर से देखना है, ठीक है, पहले हम यहाँ से देख रहे थे, एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट इन दिस डायग्राम, आपने ऊपर से देखना है और ऊपर से आप देखोगे कि आपके पास हेड ऑफ द फीमर और जो नीचे जो लैटरल और मिडिल एपिकोंडाइल्स हैं, राइट, दीज टू कंडाइल्स, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी योर एंगल ऑफ टॉर्शन। इट इज़ गोइंग टू बी 10 to 15 डिग्री एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ योर फीमर, ठीक है।